Welcome everyone to eSparks.in. We are starting a new series in which we will be focusing on the current affairs for RBI Grade B exam. As we know that it is a very competitive exam, and we are now focusing upon generally three topics: economics, social issues, and finance. We will be looking about the current affairs on these topics. So these are important for the phase 2, as you can see. Then generally after the notification, when the notification would come, we will focus on all of the other specific topics like sports, announcements, meetings, and functions or important dates. Rest all of this which will be important for phase 1. So phase 1 के लिए अभी से हम लोग फोकस नहीं करेंगे. We will be first focusing upon phase 2, right? So the first topic, PM Janman. So from which side it is important? It is important from the social issues factor. Okay, so there is a group we can know. So this is a very important scheme, remember it. And if you are watching this video, you don't need to search from more sources. Okay, आपको इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं है. You can directly completely rely on these videos. These videos will be made every day. Specifically we can say that हमेशा ही लगभग आएगा आपका videos. So you can rely on this. You can make notes from these only. और आपको इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं है for phase 2 currently. ओके, फेज 1 का बाद में आएगा. सो फेज 2 के लिए आप स्पेसिफिकली यहीं से पढ़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हैं. जो भी ऑप्शंस में क्वेश्चंस में आपको फेज 2 का अगर आप पेपर देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से बना सकते हैं. प्लस दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर. So let us start with the first scheme, that is the PM Janman scheme or the प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान. Okay, so what is this scheme? This scheme is for the particularly vulnerable tribal group. So who are these particularly vulnerable tribal group? They are a limited person who are restricted to a special zone. एक छोटा सा जोन में उनको restricted है, हर जगह पे फैले हुए नहीं है. और इनको अगर हम लोग अभी नहीं देखेंगे then we will lose their distinct culture. बहुत unique culture रहता है इनका. Okay, so these are important. They are very important part of India, very important part for any country because they have a distinct culture. They are restricted to a defined place, and therefore to protect their needs, to protect their socio-economic status, the government has launched the PM Janman scheme. When it was launched on November 2023, and there will be focus. What is the core objective of this scheme? The core objective of the scheme is to address the critical infrastructure needs. They also need some सुविधा. ठीक है, कोई भी सुविधा उनको चाहिए, कोई भी, चाहे वो वाटर or it can be land or it can be rent or housing, it can be sanitation. They also need all these facilities. So इन सुविधाओं को उनको दिलाने के लिए गवर्नमेंट has launched the PM Janman scheme. So you can ask that why another scheme? गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतने सारे स्कीम है. PM ग्राम विकास योजना, PM ग्राम सड़क योजना, ये सारे इतने सारे स्कीम रहने के बाद why, क्यों? Because these are the special groups friend and government cannot reach all these. इनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल होता है. इनके पास हर ये थोड़ा स्पेशल केयर इनको अटेंशन देना है. इसीलिए गवर्नमेंट has launched this special scheme. So where was this scheme launched? This scheme was launched in the state of Jharkhand. Okay, in the state of Jharkhand this scheme was launched. And who are the target beneficiaries? Who will be benefited? The PVTGs or the particular vulnerable tribal groups residing in 18 states and Andaman and Nicobar Islands. So government has टाइड अप 9 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज का काम है. इसमें 9 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मिल करके टोटल 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस, 11 इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स के ऊपर वो फोकस करेंगे. व्हाट इज द बजट? 24,104 करोड़, जहां पे सेंट्रल 15,336 करोड़ देगी एंड स्टेट वुड शेयर दी 8,768 करोड़. Now let us look at the 11 interventions. कहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है? पहला तो है कि उनको भी घर चाहिए, पक्का हाउसेस दिलाओ सब कोई को. So the provision of पक्का houses is for them. Second is the connecting roads. The roads must be connected. Their houses must be connected. They must be connected to the national highway or the state highway. Okay. Next is the water supply. Water supply of which type? For the pipe water connection and the community water supply. पाइप कनेक्शन भी रहना चाहिए, कम्युनिटी वाटर सप्लाई भी रहना चाहिए. व्हाट आर द कम्युनिटी वाटर सप्लाई? ट्यूबवेल्स और वी कैन से इट एज वेल्स और नॉर्मली जो टाइमिंग वेल रहता है, ये सारे चीज भी कम्युनिटी वाटर सप्लाई में आएंगे.
नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट इज मोबाइल मेडिकल यूनिट, उनको हर तरह का सुविधा, फैसिलिटीज, हॉस्पिटलाइजेशन, हर चीज का सुविधा रहना चाहिए। उनको स्किल एजुकेशन में तरफ भी उनका डेवलपमेंट होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन स्किल बाय हाउ, सो फर्स्ट इज द हॉस्टल्स, उनके पास हॉस्टल्स बनाने हैं, सो 500 हॉस्टल्स आर प्लान्ड फॉर देम। एंड देन देयर मस्ट बी द इम्पार्शन ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किलिंग, वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग में, ये सब सारी चीजों में इनको उनको ये चीज देना है फॉर दिस कंसिडरेशन ऑफ द पीवीटीज को एक इक्विटेबल प्लेटफॉर्म लाने के लिए एंड उनको इनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट वी नीड टू डू ऑल दिस। Next, there is the construction of Anganwadi centers, construction of multi-purpose centers, electrification. Electrification first can be categorized into two types. तो इलेक्ट्रिफिकेशन बिजली कैसे पहुंचाएंगे? तो फर्स्ट वन इज द हर घर बिजली। फर्स्ट तो गवर्नमेंट का स्कीम है कि एवरी हाउस मस्ट हैव इलेक्ट्रिसिटी, हर घर में बिजली जलना चाहिए। The second is there will be provision for this current supply to come from a solar off grid system. Okay, तो कोई solar power grid system भी हो उन एरियाओं में, ताकि there can be the sustainable development. ठीक है, कम से कम वो एरिया को हम लोग गंदा ना करें। Let us keep those areas clean. Let us focus on the solar off grid system. Then there is solar lighting, and then Vikas Kendra and mobile towers. So these are some of the infrastructures. So the government has कितना खर्चा हुआ है? 24,104 करोड़ रुपीज इन 11 इंफ्रास्ट्रक्चर में वो फोकस कर रहे हैं। कितने मिनिस्ट्रीज में? 9 मिनिस्ट्रीज में, राइट। कब तक स्कीम है? 2024-25, सॉरी, दिस स्कीम इज फॉर नवंबर 2023। स्कीम का कोई डेट नहीं दिया गया है। ओके, सो दिस इज द स्कीम नाउ। करंटली इसका डेट अभी हम लोग इसमें नहीं है, ठीक है। फाइनली नेक्स्ट वी विल रीच अ now we will read about another scheme, that is the central sector scheme for providing drones to women SSGs. Again ये बहुत important है because it is a topic of women empowerment. First, women empowerment, so this can also be written under the social issues. इसको आप social issues में लिख सकते हैं, ठीक है। ESI का टॉपिक में आपका ये आ सकता है। Now, तो इसमें क्या क्या चीज देखना जरूरी है पहले। So what is this scheme all about? This is to empower the women self-help group. So what are the self-help group? These self-help groups are the community of these generally women. Okay, जो खुद मिल करके they move toward the process of development, developing their village, developing the city. Okay, and they promote. The aim is to promote technological adoption. तो दो इसमें aims है। पहला क्या है? Empower the women SSGs को एम्पावर करना है। सेकेंड इज टू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है। पुराना तरह से ट्रेडिशनल मेथड्स वी कैन नॉट यूज्ड, वी हैव टू अडॉप्ट द न्यूअर टेक्नोलॉजी। ओके, सो क्या किया जा रहा है इसमें? वुमेन SSG, सो दिस इज ए वुमेन SSG। वुमेन SSG को प्रोवाइड किया जा रहा है ड्रोन दिया जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि यू कैन रेंट देम, भाड़े में दे सकते हो। किसको? दी फार्मर। तो फार्मर भाड़ा में क्यों लेगा? टू स्प्रे द फर्टिलाइजर्स इन फील्ड, फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करने के लिए लेगा, और टू स्प्रे द मैन्योर्स। ओके, ये सब चीजों के लिए फार्मर ले सकता है। सो भाड़ा में वो ये सारे ड्रोन्स को ले सकता है। देन बाय दिस रेंट द वुमेन SSGs विल अर्न मनी। इनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, ठीक है। यही है गवर्नमेंट का ये स्कीम। टारगेट इज 15,000 ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा टू दी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम 2024 to 25 to 2024 to 26। तो जनरली इट इज गिवन फॉर 2 years के लिए अभी ये स्कीम दिया गया है। नाउ व्हाट इज द बजट? बजट इज 1261 crores, राइट। नाउ बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स हियर? बेनिफिट, पहला तो बेनिफिट इसमें कौन कौन लिंक्ड है देखिए। पहला है SSGs लिंक्ड है। तो SSG के लिए क्या बेनिफिट होगा? व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर द SSGs? दे विल अर्न अबाउट रुपीज 1 लाख पर एनम बाय रेंटिंग द ड्रोन। ठीक है, वो इतना अर्न कर सकते हैं, रुपीज 1 लाख पर एनम। देन फॉर फार्मर्स के लिए है कि दे विल गेट इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, दे विल गेट गुड क्रॉप यील्ड, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। तो जब भी ये लोग फार्मर्स जब भी ये ड्रोन को यूज करेंगे, दे विल गेट दिस इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। ओके, सो दिस ड्रोन स्प्रे करते हैं फर्टिलाइजर्स को, ठीक है, पेस्टिसाइड्स को दूर दूर तक स्प्रे करेंगे। सो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं मूव करके नया मेथड में ये जाएगी, ऑटोमेटिक स्प्रे करेगी, चली जाएगी मूव करके। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स हियर। क्रॉप हार्वेस्टिंग इससे ज्यादा होगा, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, खर्चा भी कम हो जाएगी। ड्रोन को ले जाओ,
तुरंत जाके स्प्रे करके चले आओ। और इसी में अगर आप एक मैन को हायर करते, एक लेबर को हायर करते हैं, तो वो अच्छा से स्प्रे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, प्लस देयर आर अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में व्हाट विल बी द बेनिफिट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। वी आर यूजिंग दिस एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ओके, बहुत माइन्यूट एग्रीकल्चर के लिए, बहुत अच्छी से एग्रीकल्चर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट हु आर द कोलैबोरेशन। सो यू नीड नॉट रिमेंबर इट, इतना सारी चीजों को याद रखने का जरूरत नहीं है। देयर इज अ नीड ऑफ ओनली कॉमन सेंस हियर। कैसे? सिंस दिस इज एग्रीकल्चरल स्कीम, सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विल बी प्रेजेंट, राइट। एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है? रूरल एरियाज में, गांव में। सो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी देयर। एंड एग्रीकल्चर में व्हाट आर दे डूइंग? दे आर यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, department of fertilizers would be there. Omen SSGs are already present, and the lead fertilizers companies, okay, so what would they do? They would provide the fertilizer. ये कंपनी का काम रहेगा ये। Now let us look at the financial assistance. 80% सेंट्रल फाइनेंस देगी ड्रोन परचेज के लिए। So 80% price the government will give to the villages or to the SSGs. Okay, maximum कितना? Max it would be 8 lakhs rupees, 8 lakhs max it would be given, and 20% would be can be taken loan from the National Agriculture Infra Financing Facility AIF with the interest of 3%. Okay, training part is not important for your exam. रोल ऑफ व्हाट विल द रोल ऑफ द लीड फाइनेंस कंपनीज, इनका लीड फर्टिलाइजर कंपनीज क्या होगा इनका रोल? फर्स्ट इज दैट दे वुड हेल्प इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ ड्रोन, दे वुड हेल्प इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस ड्रोन, okay. Second is they would promote the use of nano fertilizers applied via drones. So this is the nano fertilizers. What are these nano fertilizers? Nano fertilizers can be said as nano fertilizers can be said as means a very fine fertilizers we can say, okay, बहुत फाइन तरह के फर्टिलाइजर्स हैं which were given in little amount quantity, इनको बहुत कम क्वांटिटी में दिया जाता है, स्प्रे किया जाता है, एंड बाय ड्रोन यू कैन स्प्रे देम इजीली, ओके। आपको इतना बड़ा फर्टिलाइजर का बैग लेकर के जाके स्प्रे करने का कोई जरूरत नहीं है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, कंटिन्यूएशन ऑफ CSS FTSs. So let us, so what is this? Generally a short form we can say that government has extended it for 3 years. Okay, so what are these FTSs? FTSs are the fast track special courts. Fast track special courts क्या है? ठीक है, एक कोर्ट तो है। What is the special courts? These special courts are used to provide fast justice, okay, in the cases related to rape, related to POSCO, protection of children for sexual offenses, ये सब चीजों में। So when was this launched? This was launched in August 2019 में इसका लॉन्च हुआ है, and this was first initially expanded for 1 year, but then उसको अभी फिर से एक्सटेंड कर दिया गया था। अभी फिर से एक्सटेंड कब से किया गया है? अप्रैल 1, 2023 से मार्च 31, 2026 तक, ठीक है। This was implemented by the Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Okay, तो 30 स्टेट्स में ये ऑपरेशनल है। 1,95,000 केसेस को ये अभी तक हैंडल कर चुका है। So it has what is the objective? It helps the states in delivering swift justice, fast justice, particularly in the remote areas. So the extension period is 3 years, April 1, 2023 to March 31, 2026. This is the fund. And what is the source of fund? The source is the central share. Okay, the central fund comes from the Nirbhaya fund. So this is a very special fund और इसको याद रखना है. So it is generally given to the rape victims, to the so कहीं पे भी कुछ अनहोनी होता है लड़कियों के साथ, so this fund is used. Nirbhaya fund. Okay. Now there is another thing, that is the Arogya Maitri Aid Cube. What is this Arogya Maitri Aid Cube? So देखिए, we are using now the facilities of the drones. हम लोग भी drones use कर रहे हैं. So by the drones, क्या ये possible है कि we can provide the mobile facility, mobile first aid पहुंचाएं? Okay, ambulance है. Ambulance can be used as a device, but जहाँ पे भीड़ हो, high population in the traffic jams, कैसे करेंगे उस टाइम पे? वहां पे so there is a facility of the first portable hospital offering a rapid response solution for emergency medical situation. प्रोजेक्ट भीष्म को देखते हैं। दिस इज द भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री, दैट इज द कोऑपरेशन, वेलबींग एंड फ्रेंडशिप।
सो ये प्रोजेक्ट विस्म के अंडर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब. सो दिस इज द पोर्टेबल हॉस्पिटल विच इज मेड अप ऑफ 20 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स. 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स है इसमें. एंड सब मिनी क्यूब्स का एक इंपॉर्टेंट काम है, हर मिनी क्यूब में अलग अलग चीजें हैं. इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, ह्यूमैनिटेरियन एड है. द यूनिक डिजाइन, तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है. द डिप्लॉयमेंट टाइम पर देखते हैं, ठीक है. 1 घंटा में आप इमरजेंसी साइट में ये तुरंत पहुंच जाएगा, विद इन 1 आवर. ओके, विद ऑल दी फैसिलिटीज, हर फैसिलिटीज के साथ ये पहुंच सकता है. What is the patient capacity? It can handle up to 200 patients suffering from various. एक ही साथ 200 patients को it can handle. Bullet wounds, burns, head injuries, spinal cord injuries, chest injuries, minor surgeries, fractures, major bleeding. ये सारी चीजों को क्या है इसका नाम? आरोग्य मैत्री एड क्यूब. You can use it for descriptive answer. You can use it for descriptive answers, for the social issues. ओके, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं. जहां पे कि हम लोग पीवी डिजीज का इस्तेमाल, पीवी डिजीज के बारे में हम लोग पढ़े, हम लोग पढ़े सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़े, फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर ये सब के बारे में पढ़े. देन यू कैन यूज दिस फॉर प्रोवाइडिंग फास्ट रिलीफ. ओके, and this before this scheme we also have read about the continuation of the CSS FTSs, okay, fast track special course. So these are all part coming under the social issues, right? सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है आरोग्य मैत्री एड क्यूब का? इट इज फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स. कोई भी डिजास्टर आता है तो हम लोग तुरंत उसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं. इमरजेंसी मेडिकल केयर का तरह ये काम करता है. इट्स पोर्टेबिलिटी मीन्स यू कैन, इट्स हाईली पोर्टेबल. इट कैन मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू अदर प्लेस वेरी इजीली. रैपिड डिप्लॉयमेंट टाइम, वेरी फास्ट डिप्लॉयमेंट एंड comprehensive treatment capabilities, making it a valuable tool for managing large scale emergencies and capabilities. Okay, so this is the benefit of this Arogya Maitri Aid Cube. Now, every day what we will do it, we will look at some of the big topics and then we will discuss them. हर दिन का लास्ट में हम लोग ट्राई करेंगे कि एक स्कीम हम लोग पकड़ ले या फिर कोई एक अच्छा टॉपिक हम लोग पकड़ ले. So today we will be discussing the current affairs about Infinity Forum. क्या है ये? India's flagship fintech event by IFSC. If you are reading finance, okay, और योर इकोनॉमिक्स, उसमें एक टॉपिक है आपका फिनटेक और द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन रीड दिस न्यूज. ओके, सो इट विल बी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस फर्स्ट रीड द व्हाट इज दिस न्यूज. ये इन्फिनिटी फोरम एक होता है जिसमें कि इट्स अ प्रोमिनेंट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA. ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? व्हाट डज दिस प्लेटफॉर्म डू? दिस ब्रिंग्स द लीडिंग माइंड्स फ्रॉम पॉलिसी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी विद इन द फिनटेक डोमेन. सो हु इज द ऑर्गेनाइजर? एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे. ऑर्गेनाइजर कौन है इसका फिनटेक इन्फिनिटी फोरम का? ऑर्गेनाइजर इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFCA. What is the purpose? The purpose is to explore and advance cutting edge in ideas in fintech. Financial technology we know, so we will need to explore and advance into the more ideas into the financial technology. We will collaborate with various policymakers, business and technology leaders. But we have learned about private partnership, public private partnership. तो कहीं ना कहीं इसी तरह से हम लोग पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे एंड देन वी विल ब्रिंग सम न्यू आइडियाज टू द financial technology. We will develop some innovative solution and opportunities for the global financial technology landscape. Now, who are the target audience? The target audience are policymakers, financial institutions, technology companies, entrepreneurs, investors, and other stakeholders interested in the financial technology. ये सबको फायदा होगा इससे. So let us look at what are the key activities of this. First is the keynote addresses by prominent figures in fintech and finance, panel discussions on critical fintech opportunities for networking and deal making, exhibitions. Okay, तो ये उतना important नहीं है, we can ignore it. So what are the benefits? ये जरूरी है. ओके, बेनिफिट क्या है ये इन्फिनिटी फोरम का? पहला तो ये बेनिफिट है कि गेन इनसाइट इनटू द लेटेस्ट फिनटेक डेवलपमेंट. पहला तो है हमको ये फोरम जब ज्वाइन करेंगे तो फोरम में डिस्कशन होगा. व्हेन द डिस्कशन विल हैपन यू विल गेट टू नो अबाउट द वेरियस फिनटेक डेवलपमेंट. यू कैन गेट कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप इन द फील्ड्स. यू कैन गेट इमर्जिंग फिनटेक ट्रेंड्स and their implications for the future. Okay, and you will also network with key decision makers in the fintech ecosystem. जो लोग की डिसीजन मेकर रहते
रहते हैं कोई भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, हाँ ये चीज कर दो, ऑनलाइन वाला चीज, ठीक है, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो लेट्स कंसीडर, तो ठीक है एक नया आइडिया आ गया है, उसको आइडिया आ गया, अभी हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करेंगे, कंपनियों के साथ, ठीक है, फिर देखेंगे इसका ट्रेंड क्या है, इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं फ्यूचर में, सेफ है कि नहीं, देन हम लोग देखेंगे कि ये डिसीजन मेकर्स के मदद से हम लोग कर सकते हैं कि ठीक है होना है नहीं होना है जो भी है। So why is it in news? Why is it is news? Because GIFT IFSC GIFT. Okay, so it is the new age global financial services. It has been launched in Gujarat. GIFT IFSC. It has been inaugurated by Prime Minister Sri Narendra Modi through video conferencing. And what is the GIFT IFSC? The future trajectory of international financial services. तो हम लोग कहीं भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज देखेंगे तो हमको ये मदद करेगा गिफ्ट आईएफएससी। सो नाउ यू कैन लर्न दैट फिनटेक वाला जो स्कोप है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक अगर आ जाए तो यू कैन यूज द गिफ्ट IFSC GIFT IFSC implemented as a global hub. Okay, so it is inaugurated by Prime Minister Sri Narendra Modi. So this all for today. We will meet in the next session. तब तक कीप रिवाइजिंग, पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। सो पीडीएफ को लिंक इसका जरूर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एंड इफ पॉसिबल आई विल रिमूव ऑल दीज मार्किंग्स। Okay, I will look into it. If possible, I will remove, or else please manage it. Okay, thank you. So we'll meet you with in the next video. Thank you. And if you like this video, please encourage us by liking this video and subscribing the button. It would generally motivate us. Thank you.